शब्द नहीं मिल रहे हैं। कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा टॉपिक ही ऐसा है। But I'm very proud of myself that I've made this cute, cozy spot for me to sit and talk about it today. I want to talk about sexual abuse today. मेरा 2 बारी रेप हो चुका है in different spans of time or in different time frames. होने के बाद भी मैं इतनी अलाइव चर्पी हूँ और रही हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि देयर इज़ अ हायर रीज़न because of which I've gone through this. That particular thought has also inspired me to come here and talk about it. I've had multiple occasions wherein I've spoken about it to multiple people, but always one-on-one. But this month, April 2026, I had gone for a retreat, the Awakening Retreat, which was facilitated by Madhvi ma'am, and there I was asked to share about it amongst a room full of people. So having one-on-one conversation about this with people who were uninformed about trauma was very different in experience from talking about it amongst a room full of people who were informed about trauma. Surprisingly, this time her retreat had only female participants. Usually it's a mix of both men and women. I have up till now, whatever or however, whatever tools were available for me to heal, I've used them. Whatever tools that are there in the market, I have tried all of them to heal myself from this. And last year, around in July or August, I found Madhvi ma'am's course, the Advanced Trauma Healing course, wherein she opened up about her sexual abuse story, and she has a whole topic as to how do you heal from sexual trauma and beyond sexual trauma करके एक चैप्टर है जो काफ़ी इन डेप्थ बताता है as to how do you heal from these things, how do you go beyond shame, is what got me interested in the first place in working with her. Because when I tried talking to people about it, people who were around me, friends, adults, lawyers, everybody asked me to forget about it. Parents were so shocked that they didn't know how to respond. To a point when I asked my father that if I go public about it and if people come and ask you tomorrow, oh, how are you going to respond? He said,
I'll go tell them that जिसके साथ हुआ है उससे जाके बात करो. तो बेसिकली कहीं पे भी कोई रिस्पाइट नहीं मिल रहा था मुझे. फर्स्ट टाइम हुआ था 2016 में, सेकंड टाइम हुआ था 2021 में. बहुत बचपन में एक हमारे पापा के एक फ्रेंड थे, बजाज अंकल. कभी कभी पापा अगर ट्रैवल कर रहे होते थे काम के लिए तो बजाज अंकल आते थे अगर कभी हेल्प चाहिए तो. आई रिमेंबर माई सिस्टर वॉज नॉट वेल, सो मम्मी हैड टू टेक her to the hospital and she didn't know how to drive at that point of time, so he had come to drive us to the hospital. I was also there, my sister was there. I think my brother wasn't born at that time. I must have been in class 1 or something because मेरा भाई पैदा हुआ था when I was in class 2. So and I so vividly remember this. vividly का मतलब यही होगा ना कि अच्छे से याद है. मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मम्मी गई डॉक्टर के पास लेके मेरी बहन को, मेरी बड़ी बहन है, मेरी बहन को, और बजाज अंकल हमारी ही गाड़ी में मुझे लेके गए. एंड ही मेड मी सिट ऑन हिज लैप एंड ही स्टार्टेड पुलिंग माई अंडर शर्ट आउट. But like how my mom used to, I remember I was wearing that dark blue velvet skirt I had. मम्मी ने बनाई थी, फ्रिल्स थे, लेयर्स वाली स्कर्ट थी, मुझे बहुत पसंद थी. सो आई डोंट नो व्हाई ही डिड नॉट ट्राई गोइंग अंडर द स्कर्ट, बट ही वाज ट्राइंग टू पुल दिस आउट एंड देन ही गॉट सो नर्वस एंड आई कुड फील इट. मुझे पता नहीं था वो क्या करने वाले हैं मेरे साथ, बट आई कुड फील इट दैट ही वाज नर्वस एंड आई न्यू दैट ही इज़ डूइंग समथिंग रॉन्ग. So he couldn't do anything. Then growing up, my grandfather, paternal side grandfather, he had this weird habit of touching women. He would touch women, whether it was us, the granddaughters, or women on the road. I don't know why. Nobody talks about it. I remember we were sitting at home one summer vacation. They would come visit us for summer vacations. So we were sitting playing Ludo or chess something, and he would touch our thighs, you know, ऐसे ऐसे उनका हाथ हिलता था तो he would touch our thighs, हाथ हिलते हिलते. So I played one game and then I lost or something, I don't know. I just got up and I was leaving. So my grandmother asked me, why are you going, come play another game. And I told her I will not sit here because he's touching me and I don't like it. I must have been a teenager. I'm telling you these stories that happened in my childhood because just look at something which is not dealt with in that moment, how the patterns repeat and how they seemingly grow in impact for us to see it and work on it. The adults in my family, if they would have taken care of this thing, or if I had, I don't think I must have ever, I don't remember whether I told about Bajaj uncle at home or not. I did tell about my grandfathers. Yeah, of course I told my grandmother and they did not do anything about it. क्या ही कर लेंगे ना, दादाजी हैं. तो to a point where he misbehaved with another cousin of mine, which is not my story to tell, so I won't. But ऐसा environment है, just imagine growing up. And my father's not done anything about it. Obviously बात तो हुई होगी. Growing up, I've had many or incidents wherein I've seen my father physically hit my mother. I've gone through the same thing wherein he has hit me, चाहे mistake है नहीं है. It was a very normalized thing कि घर में बच्चे मम्मी पिटती हैं.
So obviously there is a huge lack of feeling loved and appreciated from my father. Even though he's doing his best, he's working for long hours, providing financially for us, sure, doing his best. And now, as an adult, and as an informed trauma healing coach, I understand where was he coming from. I understand his actions, and I understand what must have he been going through because of which he behaved that way. I'm not here to shame him, blame him. I'm just here to share my story because something like this has happened with me. I would like to share my story so that somebody else sitting over there and wondering कि मेरे साथ ये क्या हुआ, क्यों हुआ और क्या हो रहा है, उसको अकेला ना फील हो. क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हुआ था उसके बाद तो मैं एकदम ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, एंड मैं फुल ऑन रेज में ऐसे काम कर रही थी जैसे बस काम कर रही थी. I would pick up painting projects, I would do workshops, I would do anything and everything that would come my way but sit and address this. मुझे पता ही नहीं था how to address it also. कहीं ये ज़्यादा information है नहीं how to address it, how to address your sexual abuse, trauma. ये information कहीं है नहीं, मुझे तो नहीं मिली, या पता नहीं मेरे 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 mental space ही नहीं था मेरे पास to look for it. The only way I knew how to get over something was to either drink alcohol or to smoke or to keep working. I did that. I earned a lot of money. I bought a piece of land in Hyderabad. I could afford drinks for myself and the dates I would go out with because they would conveniently forget their wallets, and I could afford to pay the bills. I could afford to shop without looking at the price tag. I could afford taking flights. I could do a lot of things because I had the money, but I still felt sad. I felt rage inside me. I was tired of masking the fact that I was going through something. Whenever I would get in a relationship or be in a relationship, and as soon as I would start getting closer or vulnerable to that person, there was this weird thing that was happening. वो इंसान villain लगने लगता था. I would start I would always be in suspicion of that person कि वो मेरे से कुछ लेने आया है. I tried dating twice after the first incident, and बेचारे दोनों के साथ ऐसे ही हुआ. कुछ ऑफ हो जाती थी ना मैं, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हुआ था उसके बाद मैं ऐसे सेक्स, ड्रग्स, लूज कंट्रोल, फक दिस शिट, क्या रखा है जीवन में, इस टाइप की हो गई थी. पर मैं बहुत योगा स्टूडियोज़ पेंट करे, कोवर्किंग स्पेसेस के वॉल्स पेंट करे, 100 पेंटिंग्स एक हॉस्पिटल को डिलीवर करी, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे, ये सब कर रही हूँ, फिर भी इतनी लॉस्ट थी मैं. ड्रेडलॉक्स हो गए थे इतने लंबे लंबे. कभी गोवा जा रही हूँ, कभी हम्पी जा रही हूँ, अकेले घूम रही हूँ, जनरल ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ, पहाड़ों पे चली गई हूँ, अकेली घूम रही हूँ, लिटरली अकेली घूम रही हूँ. क्यों पता नहीं है. और फिर कहीं पे भी कुछ अच्छा
लिया या फिर ज़्यादा दारू पी ली, तो क्या आ रहा है बात करने के लिए ऊपर सरफेस पे, वही बात आ रही है। तो हुआ ये था कि मैं नौकरी वोकरी करी 1 साल, फिर पसंद नहीं आ रहा था कॉर्पोरेट वर्किंग कल्चर, तो मैं वापस चंडीगढ़ गई। आई टुक एन एग्ज़ाम फॉर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स, आई क्लियर्ड, आई गॉट स्कल्पचर्स एज अ सब्जेक्ट, आई स्टार्टेड वर्किंग देयर। ये सब चीज़ें इतनी कनेक्टेड होती हैं, हाउ योर पेरेंट्स relationship is, how you're being treated as a child, because as a child I did not feel loved, irrespective of how much they tried to love me. I did not feel loved, so I started seeking for love outside my home. I started meeting, just I was a kids around me, and I'm from a girls school. There was no boys ka concept in my life. And अभी जब मैं नौकरी करके वापस गई हूँ गुड़गांव से चंडीगढ़, तो मैं वहाँ पे पढ़ रही थी एंड आई वाज डेटिंग समबडी, एंड you can imagine what sort of a relationship it would have been. We were having a lot of fun. He was fairly respectful, not really, but still, and came from a good family is why maybe I thought he is respectful, and we would hang out a lot. And you know how Chandigarh culture was earlier, I don't know about now. So one, and my mom was always against night outs, but because I had this attitude now that I have worked and come back home, I should be allowed to go out. hmm? So मैं गई and I was sexually involved. Of course I was dating him. घर पे पता था, 3 साल हो गए थे of us dating. सबको पता था हम डेट कर रहे हैं. एंड कुछ अनरेस्ट था मेरे मन में ना, उस टाइम तक कुछ हुआ नहीं है, लाइक सेक्सुअल अब्यूज़ सिर्फ बचपन वाला हुआ है. दिस इज़ बिफोर द फर्स्ट रेप हैपेंड. एंड वी स्पेंट अ नाइट टुगेदर. निखिल चिन्नप्पा का वहाँ पे कॉन्सर्ट था किटी सू में. वी स्पेंट अ नाइट टुगेदर, and before we spent the night together I had given myself 3 options or 2 options, saying if he takes me home, that means he loves and respects me. If he takes me outside somewhere, that means he doesn't care about my safety. And he did take me outside, and that was the day I decided ki I think I've had enough, I need to move on and do something. And I moved to Goa. I just packed my bags and I left. Nobody thought that I would. I don't know what came to me, I just did. I had 1,000 rupees on me and I left. That's maybe another story, a story for another time. So मैंने किसी तरह से गोवा में 1 महीना निकाला. दिसंबर था. And वहाँ I met one of my classmates, school classmates' mom. And she told me that you go back home or you go to your sister's place. She was living in Hyderabad. This is not where you're going to be. I met her at some party. So I listened to her somehow and I came to Hyderabad. I was staying with my sister. She was married, is married still, but she got married and came here. And I thought I'd just visit her for a bit. I had no plans of staying back. So ऐसे one day both of them were in office, my brother-in-law and my sister, and I found a pee test in her drawer. So me being inquisitive, I just went and I took that pee test and I realized that I'm pregnant. And then I called my ex. Thankfully, he didn't abuse me and say that, even though we had had a huge fight, of course we were not together. So he said, do whatever you want to do. All I wanted to do growing up was become a hot mom, teach my kids in strawberry fields, and I could just imagine myself getting all dressed up and going and dropping my kids to school.
तो जब मैं स्कूल जाती थी तो मैं देखती थी वहाँ पे हॉट मॉम्स को ना, तो मुझे लगता था मैं भी यही करूँगी बड़े हो के। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। घर दीदी को बता नहीं सकते, बहुत चिल्लाएगी। घर पे कैसे बताऊँ, वापस बुला लेंगे, बहुत तमाशा होगा। ऐसे ही बचपन से रंडी 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 बोलते रहते हैं। मे बी दैट्स अनदर स्टोरी फॉर अनदर टाइम। बट काफ़ी स्लट शेम किया गया बचपन से, जब तक कुछ किया भी नहीं था, ठीक है। सो जस्ट इमेजिन। एंड खैर, सो लकीली मैं आई थिंक एक बार ही पहले हैदराबाद आई थी, एंड आई मस्ट हैव मेट अ फ्रेंड। पहले मैं ऐसी थी ना कि एनीबडीज फ्रेंड इज़ हियर इन दिस न्यू प्लेस दैट आई एम इन, वुड यू लाइक टू कैच अप? तो a common friend would had introduced me to somebody. तो मैंने घर पे दीदी को बोला कि मैं उस फ्रेंड को मिलने जा रही हूँ, नो नीड टू टेक नेम्स, कोई पॉइंट नहीं है। सो वहाँ से मैंने गूगल करके अपोलो हॉस्पिटल का देख के कि कैसे कराना है, क्या करना है अबॉर्शन, मैं वो कराने गई अपोलो हॉस्पिटल। कुछ पता नहीं है घर में किसी को। दीदी वो स्वीट इनफ टू गिव मी अ शू बॉक्स जिसके अंदर उन्होंने अपना सेव्ड कैश रखा था, एंड शी वाज लाइक जितना निकालोगी उतना लिख के रख देना, एंड वेन एवर यू अर्न यू पुट दैट मनी बैक। आई वाज लाइक थैंक यू सो मच। सो शी गिव मी, आई हैड दैट फ्रीडम ऑफ मनी देयर। एंड जब आप अबॉर्शन कराते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड तक पिल्स इंसर्ट हो सकती हैं या आप ओरल पिल्स खा सकते हैं। अब ओरल पिल्स वाला टाइम मेरा जा चुका था क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला था कि मैं आई एम एक्सपेक्टिंग। एंड क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना घूम रही थी, गोवा में थी, घर छोड़ के आई थी, मैंने नोटिस ही नहीं किया कि मेरे पीरियड्स नहीं आए हैं। आई वॉज नॉट इन टच विथ माई बॉडी, माई सेल्फ। आई थिंक PCOS भी था मुझे, एंड यू नो आई वाज ओवरवेट एंड लॉट मैनी थिंग्स। तो पी टेस्ट किया, पता चला, मैंने चेक किया अपोलो में हो जाएगा ऐसा सोच के मैं कैब लेके गई। ये सब ऊबर तो आ ही गया था। तो दैट डॉक्टर ओवर देयर इंसर्ट, आई वाज 21 और समथिंग, दैट डॉक्टर ओवर देयर शी इंसर्टेड 2 pills और समथिंग इन मी, एंड उन्होंने कहा कि बहुत हैवी ब्लीडिंग होगी। मैंने कहा अच्छा। फिर माई ब्रदर इन लॉ, नॉट नोइंग एनीथिंग, इज़ लाइक कम मीट मी एट द मॉल। तो हम गए नॉर्वेट मॉल, वहाँ पे मेरे को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, एंड ऐसा ना क्लॉट्स निकल रहे थे, बहुत पेन में थी मैं। तो बस इतना बोला पीरियड्स आ गए हैं। बट द पेन ऑफ लूजिंग अ चाइल्ड, द गिल्ट ऑफ लूजिंग अ चाइल्ड वॉज सो इंटेंस फॉर मी इन दैट मोमेंट, क्योंकि ऑल आई वॉन्टेड टू डू वॉज बिकम अ मदर। तो वो एक अटैचमेंट भी था ना ऑफ द आइडिया ऑफ बिकमिंग अ मदर एंड लूजिंग अ चाइल्ड। तो पर मैं प्रिटेंड करने में बहुत अच्छी हो गई थी, क्योंकि अपने रूम में जाके मैं बहुत रोती थी, बाहर आके मैं बस इतना बोलती थी तब ठीक नहीं लग रही है। काफ़ी दिन चला ये नॉनसेंस, that I'm crying, I'm staying in the house, I'm crying. And one day their dog, Romeo, who's a boxer, he saw me crying and he boxed me. So I stopped crying. It was like a jolt कि कुत्ता मार रहा है मुझे। बहुत स्वीट था वो। मुझे ऐसे पैनिक अटैक्स आते थे ना, मैं अपने आप को शीशे में देख रही हूँ रोते हुए, और मैं अपने आँख से अपने आप को बोल रही हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। जब मैं अपने हीलिंग मेडिटेशंस कर रहे हैं, मैंने उस मी को इतना हक कर करके प्यार दिया है, क्योंकि मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही थी गाइस कि मैं अपने आप को देख रही हूँ शीशे में, मैं रो रही हूँ, मेरे साथ ये सब हुआ है अभी सच में, और मैं अपने आप को बोल रही हूँ कि तुम झूठ
बोल रही हो तुम ड्रामा कर रही हो, कितना रोगी ड्रामा कर रही हो। मैं खुद अपने आप के साथ ही कर रही थी, किसी और को कोई अभी इंक्लूडेड ही नहीं है इस कॉन्वर्सेशन में, किसी को पता ही नहीं है ये हो रहा है। तो इस टाइप का जो इंसर्शन वाला अबॉर्शन होता है, तो उन ऐसा बोला जाता है कि 99% हो जाता है अबॉर्शन। एंड मी बीइंग मी, मैं उन 1% अनोखे लोगों में से हूँ जिनका नहीं हुआ पूरा। फिर मुझे समझ में नहीं आया क्या करूँ। जब वो डॉक्टर से बात करी, उन्होंने कहा ऑपरेट करना पड़ेगा। अब ऑपरेट करने आप अकेले नहीं आ सकते हैं, यू हैव टू ब्रिंग समबडी। तो मेरे फ्रंटल लोब डेवलप होने से पहले के आइडियाज़ ये थे कि मैं टिंडर पे जाती हूँ, टिंडर पे मैं एक हॉर्नी कपल ढूंढती हूँ जो मेरे साथ थ्रीसम करना चाहेंगे। उनको बोलती हूँ कि पहले आप मेरा अबॉर्शन करवा दो जाके, फिर जब मैं ठीक हो जाऊँगी फिर मैं आपके साथ थ्रीसम कर लूँगी। I can't believe it, I'm making a video about this. But high time. तो ऐसा नहीं हुआ। और मैंने सोचा कि ऑपरेट कराने की जगह लेट मी जस्ट टेक अ सेकेंड ओपिनियन। So I went to another hospital, very sweet doctor. The first thing she asked me was, where is this guy who has done this to you? And why are you just 21 and you are alone? I had no answer because until then, before she asked me all of this, I was behaving as if I am this super adult who manages shit on her own. Because I was. Maybe not the super adult, but managing shit on my own. Little shit. ठीक है, not the cool shit. वो भी कर ही रही थी, but you know, you get it. हो गया, चलो। आई थिंक शी गेव मी ओरल मेडिसिन एंड हो गया प्रॉपर। अब अबॉर्शन हो चुका है, सब कुछ निकल चुका है, दोबारा अल्ट्रासाउंड हो चुका है, ये सब हो गया। अब मैंने अपने फैमिली में ग्रोइंग अप किसी को भी कोई हेल्दी कोपिंग मैकेनिज़म्स इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है। मैंने पापा को देखा है सिगरेट पीते हुए, दारू पीते हुए। मैंने बहुत दारू पीना शुरू किया। मेरे फर्स्ट ब्रेकअप के बाद भी मैंने यही किया था। फिर मैंने सोचा कि इंडियन लड़कों की तो बस की बात नहीं हूँ मैं, कि मैं कुछ अपरंपार इंसान हूँ। ये नॉनसेंस है सब इंडियन लड़के। मैं जाती हूँ, फिर मेरे को मिला कोई टिंडर पे एक नाइजीरियन प्रोफाइल। मैंने उसको राइट स्वाइप किया। ही वेंट आउट, ही केम विद वन ऑफ हिज कज़न्स एंड हम बोलिंग करने गए हैदराबाद में। एंड मैंने बहुत दारू पी, मैंने और दारू पी, मैंने बहुत दारू पी। और मैंने शायद ऐसे हम चिल करते हुए वापस हम उन लोग के घर चले गए। तो घर गए, आई एम स्टिल लाइक इन माई सेंसेस। घर गए, आई सॉ many boys and girls of like college going boys and girls, and I was like, okay, this is chill. Somebody was cooking, somebody was studying, somebody was doing, you know, playing FIFA. इस टाइप की चीज़ें हो रही थी वहाँ पे। So the people I had gone out with, one of them who was my date and another cousin of his, I told them that I'm going to go take a nap for a bit because मैं night out बोल के घर से निकली थी। 5 बजे से पहले नहीं जाऊँगी ऐसा, क्योंकि बाहर लोग क्या कहेंगे अगर रात में, आधी रात में वापस आ रही हूँ मैं। तो 5 बजे सुबह हो जाती है, तब घर वापस आना, 6 बजे तक आ जाना। फिर सिगरेट पीने का मन कर रहा। फिर क्या हुआ कि मैं सो गई जाके, कोई उनका स्पेयर रूम था जहाँ पे। एंड अभी भी मैंने इतना अपना ब्लॉक कर रखा है कि मेरे को एरिया याद नहीं है कि मैं किधर थी उन लोगों के साथ।
कोई अपार्टमेंट्स ही थे फॉर श्योर, वो तो मुझे पता है। तो द रूम वॉज डार्क। थोड़ी देर बाद ना मेरे को होश आता है, एंड आई सॉ 3 men in the room. One was on top of me, and 2 were standing and watching. At the moment, he was trying to enter me, or he had entered me, and like क्योंकि नहीं था. Then I got so disgusted and so scared that I went out of the room, pulled up my pants, and I went out of the room. I started yelling at the girls that were there. How could you let this happen? Because there was no point yelling at the guy I went out on a date with, right? And these girls were zapped, not saying anything. कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, ऐसा नॉर्मल फीफा खेल रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, खाना बन रहा है, चल रहा है बाहर अभी भी. तो मैं इतनी मे बी बॉलीवुड मूवी इंस्पायर्ड, मैं जाके वहाँ बाथरूम में घुसी और मैंने शावर ऑन किया और मैं उसके नीचे खड़ी हो गई, और मुझे समझ ही नहीं, और मैं रो रही हूँ एंड आई एम येलिंग, यू नो. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तो मेरे साथ इतना ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ है वेयरइन आई हैव लॉस्ट अ किड एंड नाउ दिस. एंड ट्रस्ट मी, लाइक फॉर मैनी पीपल इट मे सीम लाइक कि इंडियन डिक से कुछ नहीं हुआ तो नाइजीरियन 12-inch डिक चाहिए होगी इसको. ऐसा नहीं था. मैं बस कल्चर पे गई कि maybe Indian boys don't know how to take care of girls, because I saw how my dad treated my mom, and I wasn't treated well by the other people I knew and dated. So yeah, so I was like different nationality try करते हैं, wasn't about the dick size. Anyway, फिर जब मैं थोड़ा ज़्यादा लाउड हो गई तो वहाँ पे उन लोगों ने एक मोटा बड़ा ओल्डर नाइजीरियन आदमी बुलाया, और वो आके वहाँ हॉल में टीवी के सामने एक बड़ा सा काउच था, उस पर बैठा. उसने उन लोगों को अपनी लैंग्वेज में कुछ बोला, और ये लोग 2 लड़के और 2 लड़कियाँ मेरे को लेके पुश करते करते मुझे गाड़ी में ले गए. एंड क्योंकि मैं बोल रही थी कि मैं पुलिस में जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, बट ये हुआ. Then these girls started apologizing कि we are students and we've come to give exams, ये हमारे लास्ट एग्ज़ाम्स हैं, प्लीज़ हम लोगों की ज़िंदगी ख़राब मत करो, ये मत करो, वो मत करो, पुलिस के पास मत जाना, वी आर वेरी सॉरी, वी आर वेरी सॉरी. तो मैंने कहा कि तुम लोग मुझसे बात मत करो, कीप ड्राइविंग मी अराउंड टिल 5 o'clock in the morning, let me cry. And I made them put a particular song. I'm at the moment not sure which song it was, but मैं रोती गई, मैं वो गाना गाती रही, मैं विंडो के बाहर देखती रही, वो लोग मुझे ड्राइव कराते रहे. एक पॉइंट आया जब उन्हें पेट्रोल डलाना था गाड़ी में, तो मैंने कहा मैं उतर जाती हूँ. मैं उतर गई, गीली हूँ मैं अभी भी. हाँ, शार के नीचे खड़ी थी ना. मैंने कहा मुझे सिगरेट पीने दो. पेट्रोल पंप के बाहर उतार दिया, सिगरेट पीने दिया मेरे को वहाँ पे. एंड मेरे यहाँ पे राइट हिप पे मेरे को 2 इंजेक्शन के निशान दिखे. सो दे माइट हैव इंजेक्टेड समथिंग इन मी एंड were doing what they were doing, might not have expected me to wake up. तो अब मैं हो गई हूँ परेशान, मतलब उस टाइम पे अब मैं हो गई थी परेशान. फिर घर जाके भी मैं बता नहीं सकती थी कि मैं क्या हुआ है मेरे साथ. नितिन वापस घर जाओ, एंड
my parents would have blamed my sister, and I didn't want that to happen. It was not her fault. It was not my fault either, but it was definitely not her fault. All she did was be nice to me and give me space in her newly marital home. So I did the whole रेज में काम करने वाला एपिसोड. खूब घूमती थी, खूब सब कुछ किया, खूब रोती थी. आई मेड one friend who would sit and listen to me again and again, again and again, again and again. I've stopped talking to that friend of mine because with the amount of exposure he had, with the amount of money he had, he could have simply asked me, with the amount of mental bandwidth he had and clarity he had, he could have simply asked me or pushed me in the direction of taking therapy. But what did he do? He just kept taking me out for coffees and dinners and come talk to me. किया मेरे साथ. So strange. फिर मैं अलॉन्ग विद द वर्किंग रेज मेरे पास एक और रेज मैं अपने अंदर फील करती थी, विच वॉज दैट आई बिकेम वेरी कैजुअल अबाउट माई बॉडी. क्या चाहिए तुम लोगों को? मेरी बॉडी चाहिए, ले लो, मैं तो नहीं मिल पाऊँगी. इस एटीट्यूड में रहती थी मैं. तो ऑल ऑफ दीज बहुत कैजुअल एक्सपीरियंसेस हुए. कुछ फ़न नहीं था, कुछ रस नहीं था जीवन में. मैं बस अंदर ही अंदर ख़त्म होती जा रही थी इन अ वे. फिर और इस पूरे एपिसोड के बीच में मैं लैंड वैंड ले चुकी हूँ. सब कुछ हो रहा है, चलता जा रहा है, ये सब कुछ हुआ. फिर कुछ हुआ घर पे जहाँ पे मेरी कुछ बहस हो गई, जहाँ पे आई डिसाइडेड और आई वॉज आस्क्ड टू एंड आई डिसाइडेड टू मूव ऑन फ्रॉम हैदराबाद. मैंने पूछा अपने घर पे, क्या आपको मेरी प्रेजेंस से फ़र्क नहीं पड़ता है? तो जब मैं ऐसे क्वेश्चंस पूछती हूँ, मैं बहुत सीरियसली पूछ रही हूँ. शायद उन्हें लगा नहीं कि मैं इतनी सीरियसली पूछ रही हूँ. उन्होंने मजाक में बोल दिया नहीं. मैं बहुत सैड हो गई थी इस बात से. एंड ट्रस्ट मी, मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं पहचानती थी. मैं वो थी जो सब लोग बोलते थे कि हाँ कोई भी काम है इसको बुला लेना, ये सब काम करा देती है. द गुड थिंग्स है ना, दीज वर द गुड थिंग्स. I was always there for everybody. Growing up, I would manage the house. Growing up, took care of my brother. Used to cook a lot. तो ये हो गया. तो मैं हैदराबाद छोड़ के हिमाचल जाने लगी. चली गई. वहाँ पे मेरे को जितने लोग मिले, अब मैं प्रिटी तो हूँ, लोगों को मज़ा भी आता है मुझसे बात करके. थोड़ी देर के बाद मैं अपना यही रोना शुरू कर दी थी. मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया. 7 साल मैंने ये किया. 7 years, 7 long years. I cried about losing my child. I cried about getting raped. And I had nobody had any clue how to console me. People would get a shock of their lives कि ऐसा सच में होता है. जैसे नॉट ऑल मैन वाली जो बात है ना, अब इन मैन ने किया, पर जो बाकी के मैन मुझे मिलते थे उन लोग को समझ ही नहीं आता था हाउ टू रिएक्ट. फिर एक किसी आदमी ने मुझे बोला कि तुम ऐसा इसलिए मुझे बता रही हो जिससे कि मैं तुम पे तरस खाऊं और तुमको प्यार करूं. तो मैं बहुत इरिटेट हुई इस बात से. मैं इसलिए बताई थी कि तुम्हें मेरा सारा पास्ट पता होना चाहिए. खैर, देन आई स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट. अंदर रखती थी मैं.
पर मेरा एटीट्यूड ऑफ तुमको क्या चाहिए, सिर्फ मेरी बॉडी चाहिए, गया नहीं था कहीं। उसी लेंस से मैं सबको देखती थी, और कहीं पे भी कुछ भी अनरिलेटेड जगहों पे मेरा आउटबर्स्ट हो जाता था। गोवा रही मैं काफ़ी टाइम। वहाँ पे भी लेफ़्ट राइट एंड सेंटर पीपल वर अप्रोचिंग मी कि डेट कर लेते हैं, वन नाइट स्टैंड, व्हाटएवर, पार्टी चलते हैं, पार्टी के बाद क्या ही होगा सबको पता ही है। एंड तो मैं बड़ी अलूफ रहने लग गई। आई स्टार्टेड I took care of an old lady called Kara. Another story for another time. I was volunteering for hostels. बहुत काम, फिज़िकल वर्क कर रही हूँ, ब्रेनलेस फिज़िकल वर्क कर रही थी मैं। आर्ट थेरेपी वर्कशॉप्स गोवा में भी कर रही थी, योगा सेशंस गोवा में भी कर रही थी। सुबह सुबह साइकिल पे जाके अंजुना बीच पे जो रेव पार्टीज चल रही होती थी, सुबह सुबह वहाँ जाके डांस करने जाती थी। एग्जीबिशंस की है, फ्ली मार्केट्स की, ये सब कर रही हूँ मैं, बट कुछ फील नहीं हो रहा है ठीक, कोई भी anybody trying to come close to me, whether in a romantic sense or not, मेरे आउटबर्स्ट होते थे उनके साथ, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि ये लोग सुन नहीं रहे हैं मेरी बात। ठीक है, फिर वापस हैदराबाद आई, नौकरी करी, क्योंकि घर से अल्टीमेटम मिला, या तो शादी कर लो या तो नौकरी कर लो, ये क्या कर रही हो। नौकरी करने लगी, कोविड आया, नौकरी मार्केटिंग टीम डिज़ोल्व हो गई। फिर माई एज was saved by my art. I was hired by a fashion designer. He and I started women apparels under his brand. I was working a lot. छुट्टी मांगी नहीं दी. So I went to Goa. I started living with a friend of mine. I was doing some different jobs for her, like renting out her rooms, like selling her jewelry, things like that, selling my paintings on the side. Had opened up a studio space in Goa. I was going there painting, having workshops. ये सब मैं रेगुलरली कर रही हूँ। फिर कुछ बात हुई मेरी और उन फ्रेंड के बीच में, वेर इन आई चोज टू मूव अगेन, क्योंकि अब बहस करने की ताकत नहीं रह गई थी, एनर्जी नहीं बची थी मेरे में बहस करने की। Then again I took up another place and I started living in Goa on my own, far away from the beach, so that everybody and anybody whoever is visiting Goa should not call me and be like, let's hang out, because that's what was happening when I was living closer to the beach. And again I'm like, अब 2016 से अब 2021 हो गया है, let me try and date again. I tried. मैं डेट पे गई, ऐसा कुछ खास मज़ा नहीं आया मुझे, ठीक है, आई एम लाइक लेट्स बी फ्रेंड्स। फिर सेकेंड वेव आया कोविड का, फिर लॉकडाउन्स लगने शुरू हुए। मैं एक फॉरेस्ट फायर में फंस गई थी गोवा में। वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि गोवा इज़ टेलिंग मी टू मूव ऑन। सो बात हुई, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैड अ होम स्टे इन हिमाचल. शी इज़ लाइक, व्हाई डोंट यू कम हियर एंड मार्केट दिस? एंड आई वाज लाइक, ओके श्योर, लेट्स डू दैट. तो मैंने अपना सब सामान पैक किया एंड ये जो बम्बल डेट पे गई थी मैं, उसके वेयर हाउस में अपना सब सामान रखवा दिया. एवरीथिंग हैपेंड सीमलेसली डन. मैं हिमाचल गई, मैं उस फ्रेंड के होम स्टे में रही, मैंने खूब मार्केटिंग किया, कुछ हुआ. I felt like the friend's boyfriend was hitting on me, and when I told my friend, she said, you're just jealous, which I was like, whatever, and then I moved on from there. Then I went to an Osho ashram and I stayed there for a bit, and 3 days silent retreat किया मैंने. फिर मैंने सोचा मैं भी घर ही चली जाती हूँ, मैं भी वही है मेरी किस्मत में, अपने मम्मी पापा के साथ रहना. तो जब मैं वहाँ से निकल रही थी, वहाँ मुझे बोल्ट और ब्लंट मिले. रास्ते में 6 किलोमीटर फॉलो कर रहे थे. अगेन स्टोरी फॉर अनदर टाइम.
देयर आई फिगर्ड आउट कि ओशो आश्रम में तो कुत्ते रख नहीं सकती हूँ, तो कहीं फ़ोन घुमाए एक कॉमन फ्रेंड के यहाँ पे हमें जगह मिली, मुझे और बोल्टो ब्लंट को। तभी लोग बोल्टो ब्लंट नहीं थे, ये बस रेस्क्यू डॉगीज़ थे। एंड दैट गर्ल was kind enough to give us space to live over there, and then eventually we became friends. And then I'm like, okay, let me do one thing, let me just um, get my stuff from Goa. And I came to Goa, and I was living with that friend of mine jinke rooms I was subletting, and you know, all of that. तो मैंने कहा मैं बस अपना सामान लेने आई हूँ, मैं सब कुछ अपना वेयर हाउस से उठा के पैक करके जाना चाहती हूँ वापस। अब मुझे याद नहीं है ये दोनों चीज़ें साथ में हुई थी कि कैसे हुआ था, कि मैं पहले हैदराबाद आई थी, नहीं मैं गोवा गई थी, हैदराबाद में उसके बाद आई होंगी। मैं गोवा गई एंड मैं अपना सामान लेने जिस दिन गई वहाँ पे उसके वेयर हाउस में हम लोग थे, मैं और वो दोनों थे, एंड बहुत सारे वर्कर्स भी थे। सो आई वाज लाइक कि मैं ये सामान लेके जाना चाहती हूँ, इस लाइक थोड़ी देर वेट कर, काम ख़त्म हो जाएगा फिर चलेंगे। उसके सारे वर्कर्स चले गए, उसके बाद हम निकलना शुरू हुए। ही केप्ट डिलेइंग। फिर वहाँ पे इज़ लाइक लेट मी आई वांट टू मीट वन ऑफ माय फ्रेंड्स, लेट्स मीट हिम एंड गो। एंड आई वाज लाइक अगर कुछ मेरा सामान बिक जाता है, लाइक आई हैड टेबल्स एंड स्टूल्स एंड चेयर्स, कि वो मैं बेच के आई विल नॉट हैव टू कैरी ऑल ऑफ दैट, आई जस्ट वांटेड टू कैरी माय आर्ट वर्क एंड माय बुक्स एंड नोटबुक्स एंड अदर एसेंशियल्स जो भी होंगे। तो this particular guy tells me that there is this another guy who would like to buy your stuff, why don't you meet him? मैं क्या कल मिलते हैं, अभी मेरे को जाने दो, मेरे को ड्रॉप करो with my सामान। So he's like, we are here, let's just do the meeting here and then we'll go. And I'm like, क्या ही बोल सकती हूँ, मैं क्या ओके। फिर हम बैठे रहे वेट करते रहे। तो मेरे वो फर्स्ट वाले इंसिडेंट के बाद से मैं दारू ऑफ एंड ऑन पे थी, क्योंकि ये हुआ। उसके बाद मैंने बहुत पी, उसके बाद मेरी कहीं किसी ग्रुप, हैदराबाद के ग्रुप में किसी से बहस हो गई थी न्यू ईयर्स पे। उसके बाद मैंने बहुत कम कर दिया कि ओके इट्स नॉट माई थिंग, अल्कोहल इज़ नॉट माई थिंग। सो मैंने स्मोकिंग पे एकदम नेक्स्ट लेवल दिन के 2 डब्बे टाइप चलाया काफ़ी टाइम तक। फिर हम वेट करें एक जगह पे ना, एंड ही केप्ट saying, and I was practicing celibacy at that time because I didn't want to date anybody. हिमाचल जाके I was like ये करते हैं, मज़ा आएगा। and now when I look back at it, मैंने जब उसको ये बात बोली थी that I am celibate, तो उसमें एक इरिटेशन दिखी थी मुझे, जो मैंने उस मोमेंट में इतनी ध्यान नहीं दी उस बात को, है ना। and I was not drinking and he's like no just have one drink वो have one drink के चक्कर में उसने मेरे को 2-4 बियर पिला दी और मैं बिल्कुल बियर नहीं पी रही थी, बिल्कुल दारू पी ही नहीं रही थी, तो मैं थोड़ी हाई भी हो गई थी। फिर रात हो गई है एंड दिस गाय कम्स इन जिसने मेरा स्टूल वूल ख़रीदना है, एंड इज़ लाइक मैं भी 1-2 बियर पीना चाहता हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। एंड देन फिर बहुत लेट होता जा रहा है एंड देन दीज गाइज आर लाइक व्हाई डोंट यू टेल योर फ्रेंड दैट यू विल स्टे बैक हियर एंड ऑल ऑफ दैट। फिर मुझे भी लगा कि हाँ चलो ठीक है, यही कन्वीनियंट होगा, कन्वीनियंट कीवर्ड, कन्वीनियंट होगा, यहीं रुक जाते हैं। नेवर बी कन्वीनियंट या कोई पॉइंट नहीं है, पीपल डिसरिस्पेक्ट यू। कन्वीनियंस के नाम पे खुद का बहुत खर्चा हो जाता है,
एनीवे, सो एक और एक्स्ट्रा रूम था इन लोगों के पास, सो आई अग्रीड टू स्टे। एंड फिर आई वाज जस्ट अबाउट टू रैप अप माय डे। आई डोंट नो एकदम से क्या हुआ ना, ही केम, दिस गाय केम एंड सैट विद मी। एक एक बंदे का नाम निखिल है, जो मेरा बम्बल डेट था, एंड दूसरे बंदे का नाम आर से कुछ है। And I was wearing like this bikini top inside and a kaftan on top, full ऊपर से लेके नीचे तक सब covered है। एंड मैंने बियर पी है। मुझे नहीं समझ में आया, एकदम से लास्ट में जब मैं जाने वाली हूँ इन माई रूम, कि मैं चली भी गई थी, एंड देन दे कॉल्ड मी बैक एंड दे लाइक एक बात तो सुन, एक बात तो सुन, एक बात तो सुन करके कुछ कुछ बात कर रहे थे। एंड ही केम, ही सैट नेक्स्ट टू मी, एंड यहाँ से मेरा ही ओपन माई टॉप एंड व्हाट द फक आर यू डूइंग, ठीक है। एंड देन both of them just held me and they started doing things, and I'm saying no, I'm saying no, and they both are not listening. And after a point I stopped saying no, and I just let it happen. I was blacking out in between, and I just let it happen. And they both were having conversations amongst each other, and they're like, oh, did you come so soon, इस टाइप की बातें कर रहे थे वो लोग। Nobody is giving me any attention. अगर प्यार से मुझसे पूछ लिया होता, maybe I could have gotten interested in wanting to do a threesome, because I'm mature and I'm old enough, experienced enough to have my own experiences, and I am open and curious enough to have fun sexual experiences. बात तो करके देखते, बट वो एक सेंस ऑफ ईगो था। हाउ इज शी सो हैप्पी एंड सेइंग शी इज सेलिब्रेट, प्रैक्टिसिंग सेलिब्रेसी। मैं बताता हूँ कैसे करेगी प्रैक्टिस सेलिब्रेसी, ये एटीट्यूड था निखिल का। फिर मैं रो रही हूँ, मैं एक कोने में जाके बैठ गई हूँ। आफ्टर दे वर डन, मैं बाथरूम गई, मैं कोने में ऐसे सिकुड़ के रो रही हूँ। सो द अदर गाय गेव मी, told me कि तुम ये वाले रूम में, which is a better room, he's like go sleep over there, and I did get up and go to the bed, and then they both came in that room, and this Nikhil guy is walking around the bed and he's stroking his dick and he's saying something, and I'm blacking out and I'm crying and I'm blacking out. मैं फिर होश में आ रही हूँ, मैं फिर black out हो रही हूँ, and then they did whatever they did. Then सुबह हो जाती है। This guy says, Sachita, party time is over, it's time for you to leave. And then I wake up and this, मेरा सामान एक गाड़ी में है, and this other guy goes to drop me at my friend's place, and I come back to her place, let's call it home, and I again pretend like nothing happened.
मुझे यूटीआई हो गया, मुझे उल्टियाँ हो रही हैं, मैं नहीं बता पाई कि मेरे साथ क्या हुआ है। And now that I don't have the money to go back home, I am kind of dependent on selling my furniture to this guy to have some extra cash on me while I'm gonna make this whole big journey back to Himachal. So now I have to call the abuser and keep following up with him to make the payment, which he eventually does. And I tell him कि मेरे को UTI हो रहा है. It's like I'll come and give you a medicine something, but nobody did, nobody came, nothing happened. फिर मैंने अपना सब सामान लेके कैब में ट्रेन में गई, वहाँ पे सब चीज़ें बॉक्सेस में डलवाई, फिर उनको बैग्स में डलवा के सिलवा के मालगाड़ी में डलवा के अपनी ट्रेन लेके दिल्ली आके कि चंडीगढ़ आके सारा सामान कैब में डलवा के वो सब लेके मैं जा रही थी हिमाचल। वहाँ पे जाके बोल्डर प्लांट को देख के अपनी दोस्त को मिल के थोड़ा बेटर फील हुआ। फिर 2-3 दिन के बाद मैंने अपनी हिमाचल वाली दोस्त को बताया कि क्या हुआ, क्योंकि मैं अभी तक समझ ही नहीं पाई थी कि क्या हुआ। तो शी वॉज द वन हू टोल्ड मी कि सचता इसको रेप बोलते हैं। एंड आई वाज लाइक बट आई वाज द वन ड्रिंकिंग विद देम। शी लाइक दैट डजंट मैटर, इफ यू हैव सेड नो it means no. तो मुझे गोवा में कोई एक और लड़का मिला था जिसने मुझसे एक पेंटिंग खरीदी, मर्चेंट नेवी में था वो। उसने मुझसे बात करी क्योंकि मेरी पेंटिंग शायद डिलीवर हो गई थी या कुछ इस टाइप की बात। रैंडमली गॉट इन टच विथ मी, रैंडम। लाइक मैंने उसको बताई ये बात। तो अभी जब ये सेकंड टाइम रेप हो गया ना मेरा, तो आई वाज लाइक अब मैं 7 साल दोबारा दूँ इस चीज़ पे? मैं अब 7 साल और रोती रहूँ कि मेरा रेप हो गया, मेरे पास और कोई काम नहीं है कि यही करती रहूँ मैं ज़िंदगी भर कि मेरा रेप हो गया, मेरा अबॉर्शन हो गया, मेरा रेप हो गया, मेरा अबॉर्शन हो गया, मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब है, हाय तौबा, हाय तौबा, हाय तौबा, मौत आ रही है, आ नहीं रही है, मौत आ रही है, आ नहीं रही है। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मैं कहा अब मैं क्या करूँ, 7 साल तो और मैं नहीं दे सकती सेम टॉपिक पे। मतलब कोई अच्छा टॉपिक हो तो उसमें सोचा भी जाए ना, ये क्या है। अगर चलो फ़ाइट करने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट टाइम नहीं कर पाए, मे बी इसीलिए मेरे साथ ये बात रिपीट हो रही है, अब फ़ाइट करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने विद दैट गाइज हेल्प, वो मर्चेंट नेवी वाला गाइज हेल्प, आई got in touch with a few lawyers, this that what not. You know what the lawyers told me? The lawyers told me अभी तुम young हो, ये लोग बहुत पावरफुल हैं, बहुत इनके सोशल कनेक्ट्स हैं पॉलिटिक्स में, ये वो यू वॉन्ट बी एबल टू विन दिस, यू वॉन्ट बी एबल टू विन दिस केस। तुम यंग हो, तुम केपेबल हो, तुम कितनी टैलेंटेड हो, वाई डोंट यू मूव ऑन। And this lady lawyer has a daughter who asked me to move on. I still have a number. और मैंने 2-4 लॉयर से बात करी, उन्होंने मेरे को 2.5-3 लाख रुपए के बिल पकड़ाए और बोला ये पे करना पड़ेगा, तब हम वहाँ जाएंगे, इंक्वायरी स्टार्ट करेंगे, ये वो। मैं बस नहीं थे 2.5-3 लाख रुपए यार इस चीज़ के ऊपर स्पेंड करने के लिए, ना मेरे पास वो इमोशनल स्ट्रेंथ थी टू फाइट इट। मैं इतनी परेशान थी ना, मेरी बॉडी इतनी परेशान थी कि मैं सोती थी ना तो मैं रात में ऐसे काँप के उठ जाती थी
कोई है क्या मेरे साइड में? बैठे बैठे ना मैं ऐसे जोन आउट हो जाती थी और मेरे को वही कि ये मैं ऐसे ब्लैकआउट हुई पड़ी हुई हूँ और निखिल अपना डिक स्ट्रोक करता हुआ गोल गोल घूम रहा है उस बेड के, एंड ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा है। इस टाइप की चीज़ें होती थी मेरे साथ। सो मच सो कि 2022 में मैंने इंडियन आर्ट फेयर में पार्टिसिपेट किया था, एग्ज़िबिट करी थी मैं वहाँ पे अपनी पेंटिंग्स। 3 दिन का एग्ज़िबिशन था। थर्ड डे मैं वहाँ बैठी हुई हूँ। मैंने वहाँ पे एक ट्रेंड शुरू किया कि हम लोग इतने बोर हो गए थे सारे आर्टिस्ट। मैंने वहाँ पे ट्रेंड शुरू किया कि अपनी स्केच बुक ले लो, बैठ जाओ, अपना पेंट करना शुरू कर देते, बहुत हो गया। तो सब लोग यही कर रहे थे हम लोग। तो मैं वहाँ बैठी हुई हूँ स्टॉल में। इफ़ यू बिन देयर यू नो देयर आर नो टेबल्स एंड ऑल, दैट्स व्हाई इट वाज फन टू जस्ट सिट ऑन द फ्लोर एंड स्टार्ट पेंटिंग। हज़ारों सौ बहुत सारे लोग हैं ना इंडियन आर्ट फेयर में, वहाँ बॉम्बे में। मैं वहाँ बैठी हुई हूँ, सब ब्लर हो गया है, सांस नहीं आ रही है मुझे, और मैं फिर उस रूम में पहुँच गई हूँ। कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है किसी चीज़ का, स्पेस का, कहीं पे भी। मैं एकदम से बैठे बैठे सब जोन आउट हो जाता है। लोगों के साथ बैठी हुई, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, मैं लोगों के साथ बैठी हुई हूँ और वहाँ जाके सब जोन आउट हो जा रहा है। ऑन दी आउटसाइड मैं काफ़ी सॉर्टेड लग रही थी सबको। 2 कुत्ते, अच्छे घर में रहती थी मैं वहाँ पे, बीड में भी, हिमाचल में भी। एनीबडी वुड अप्रोच मी अगेन, एनीबडी वुड ट्राई टू कम क्लोज टू मी। तो यही सारी चीज़ें इरप्ट होके आती थी बिकॉज इतना हर्ट, पेन, बिट्रेयल, दुख बस गया था मेरे मन में। मैंने न्यू ईयर्स के टाइम पे उसको फ़ोन किया, निखिल को, और मैंने कहा तुमने ऐसा ऐसा किया। उसने कहा सचता यू आर अ क्रेजी चिक, सचता यू आर अ क्रेजी चिक। मैंने गोवा में कई लोगों से बात करने की कोशिश करी, उन सब लोगों ने मुझे कहा कि दे नो दीज 2 पीपल एंड दे डू दिस ऑफन। उन लोगों से पूछा कि अगर मैं पुलिस के पास जाती हूँ विल यू से दिस ऑन रिकॉर्ड, तो उन्होंने कहा नहीं। तो मुझे नहीं पता ये जो ऐसे बातें होती हैं ना कि इस औरत ने उसको, उस आदमी के ऊपर नकली रेप का केस लगा के उसको फंसा दिया। भाई मेरे से तो नहीं हो पाया, होने के बाद मैं नहीं कर पाई केस। तो आई डोंट नो कौन क्या कर रहा है, शायद इसीलिए सब लोग चुप ही रहते हैं। मैं वो जो मेरी गोवा वाली फ्रेंड थी जिनका मैं रूम वूम करने की कोशिश करती थी, उनको मैंने बोला शुड आई टॉक अबाउट इट ऑनलाइन, बिकॉज माई ऑनलाइन कम्युनिटी इतने प्यारे हैं सब लोग, मुझे इतना प्यार मिलता है। मैंने इतने कुत्तों की जान बचाई है इन ऑनलाइन कम्युनिटी से फंड रेज़ करा के। मैं इस बार ही लुधियाना टू हैदराबाद पहुंची हूँ फंड रेज़ करके। मेरा इतना प्यार मुझे मिला है। मैं आई थिंक माई होल ब्लो अप ऑफ मी कमिंग टू अ न्यू सिटी लाइक हैदराबाद एंड doing art, so much respect, so much love I've gotten through my online community। और मैं कुछ शेयर ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा यहाँ पे ऐसा अटक गया था ना कि गाइस मैं तुम लोगों को कैसे बताऊँ मेरे साथ ये सब हो चुका है। जो मैंने लैंड खरीदी वो डिस्प्यूटेड निकली, जितने बंदे, खैर लेट्स नॉट टॉक अबाउट बंदर्स, because see with the bandas I think all the guys I've dated I've attracted, it really hurt people because I was so hurt। तो my last relationship in 2023, poor guy, he also had his own parental trauma and things like that, but not trauma to the extent of what I was going through। एंड मैं थक जाती थी इतना काम करते करते, तो मेरा हर लूटियल फेज में एक बर्स्ट होता था, आउट बर्स्ट, एंड ही लव्ड मी सो मच दैट ही टुक इट and I would get so irritated that he's taking it। I wanted him to respect himself and leave, which he eventually did after promising me that he would never leave। And then he was like you decide। So अब हमारी community भी ऐसी है ना, देखो कि the day he left
the same day or the next morning I was asked out by somebody else कि कोई बात नहीं, ऊपर एक गली है जहाँ पे हम घर लेके रह सकते हैं, तू और तेरे कुत्ते दोनों जन आ जाएंगे, तीनों जन। मैं कहा नहीं, मैं जा रही हूँ अब यहाँ से। फिर मैं यहाँ आई बिना बोल्ट और ब्लंट के, हैदराबाद। अब मुझे लगता है कि मैं इतना पिछले साल से मैं अपने ड्रामा हीलिंग पे काम कर रही हूँ। मैंने बहुत काम किया, मैंने बहुत जर्नल किया, मैंने बहुत मेडिटेट किया, मैंने बहुत रोया, मैंने बहुत रिलीज़ किया। मैं करती ही चली जा रही हूँ, मैं करती ही चली जा रही हूँ, मैं करती ही चली जा रही हूँ। और अब मैं वो इमोशनल चार्ज से जो 100 पॉइंट्स पे था मेरा इमोशनल चार्ज आउट ऑफ 100, वो अभी है कहीं 10, 25, 7, 10 भी हो सकता है। इतना अभी आई एम नॉट फीलिंग डिस्टर्ब्ड। आई एम नरेटिंग दिस एज अ स्टोरी। एट द सेम टाइम आई एम टेलिंग माई सेल्फ, समथिंग इनसाइड मी इज़ टेलिंग मी कि क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, क्यों बोल रही हो। देयर इज़ समथिंग इनसाइड मी विच इज़ टेलिंग मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, कीप गोइंग ऑन। And mostly that's my teacher's voice, not mine. And I'm doing this only so that other women do not feel alone in this, because when the second time things happened and I'm an adult, I've had sex, why did I feel, my question was not that why was I raped, my question was why does non-consensual sex feel so bad. And I am going through every possible link on the internet where people have spoken about how they have come out of the abuse that they had gone through. सब कुछ पढ़ लिया, किसी ने कुछ बात ही नहीं करी है इस बारे में। ऑनलाइन कोई बात नहीं कर रहा है इस बारे में। इंडियन तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है किसी को बात करते हुए। एंड ट्रस्ट मी, क्योंकि अब मैं इतना कर चुकी हूँ ये सब कुछ, every woman I have met has gone through this. Only some women have not, like maybe 8 out of 10 women have gone through some sort of abuse, and 4 to 6 out of 10 men have gone through some sort of sexual abuse. And still we behave as if ये चीज़ तो हमारे यहाँ पे होती ही नहीं है। तो अब उस फसाड को थोड़ा छोड़ देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट इज़ वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, एंड आई डोंट नो हाउ मच ऑफ इट विल आई एडिट, हाउ मच ऑफ इट विल आई कीप, विल आई इवन पोस्ट, विल आई इवन बी एबल टू पोस्ट ऑल ऑफ दिस, मुझे नहीं पता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट आई एम रिकॉर्डिंग इट विथ एन इंटेंशन ऑफ पोस्टिंग इट। आपके घर में कोई बिना बताए घुस जाए, वो गलत है। तो आपकी बॉडी में कोई घुस जाए, फोर्स करे अपने आप को, उसके बाद शेम करे आपको, और इस शेम के बारे में आप किसी से बात नहीं कर सकते, किसी को कुछ बोल नहीं सकते, तो वो शेम बड़ा होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ आई एम सो लकी कि मैंने ट्रैवल करने की हिम्मत दिखाई और मैंने इतने सारे स्ट्रेंजर्स और अननोन लोगों से अपनी स्टोरी बार 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 शेयर करती रही। तब जाके मैं इस पॉइंट पे हूँ कि मैं इस चीज़ के बारे में बात कर पा रही हूँ। देयर आर सो मैनी वुमेन, आई हैव हैड अ वुमन हु वॉज इन हर लेट 50s or mid 50s who came for one of my workshops, and when we were working with her we found out what is she upset about after having a full married life, full life, 3 kids, बढ़िया घर, बढ़िया पति, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। किस बात से वो परेशान है कि उसके अंकल ने उसको बचपन में मैन हैंडल ग्रोप वोप किया और कुछ अननेसेसरी सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ उनके साथ। कम है बेबी, अच्छा वहाँ बैठ गया, ओके। तो मैं अभी 33 की हूँ, मैं 34 की होने वाली हूँ।
एंड मैंने कहीं पे इस मंथ देखा कि सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, अप्रैल मंथ इज़ बीइंग used or is used to talk about sexual assault and sexual abuse. Sexual abuse month गलत है ना बोलना, सेक्सुअल अब्यूज़ मंथ, टू टॉक अबाउट सेक्सुअल अब्यूज़, ठीक है. सो मैंने बहुत लोगों को हर्ट किया इस पूरे प्रोसेस में. वाइल आई वॉज हर्टिंग पीपल हु मेंट वेल टू मी, पीपल हु डिड नॉट मीन एनी थिंग टू मी बट वो स्टिल अराउंड एज फेलो ह्यूमन बींग्स. मैंने उन लोगों को भी बहुत हर्ट किया क्योंकि मैं खुद बहुत हर्ट थी. अलॉन्ग विद दैट बहुत बहुत अलग सा करेज आ गया है मेरे अंदर एज एन इंडिविजुअल, बिकॉज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट हैज़ हैपेंड आई हैव नॉट गिवन अप. आई हैव नो प्लान्स ऑफ गिविंग अप ईदर. मैं चली हुई हूँ और मैं चलती रहूँगी. एंड जिस हिसाब का प्यार और सपोर्ट मुझे अभी मिल रहा है थ्रू दिस न्यू कम्युनिटी दैट आई हैव फाउंड बिकॉज ऑफ माधवी मैम, मुझे लगता है मैं अब नहीं रुकने वाली हूँ. आई थिंक ये तो मेरी पहली वीडियो है. सो for the boys I'd like to say, if you are not one of those men, oh not all men में से अगर आप those men हैं, some men हैं who don't do it, and if you're confused, because a lot of boys have come to me recently on my Instagram and told me that they don't know how to approach girls. So me being me, मैं आप लोगों की सखी. A no is a no, a maybe is a no, I'm not sure is a no, please give me some time is a no, hesitating and pushing you back is a no, not saying anything is also a no, only a yes is a yes, yes please is a yes, everything else is a no. That's what consent is. Okay? Do not fear in asking for consent. Just ask, do you want me to do this with you? Do you want to do this with me? Do you want to wait for it? How would you like to do it? Use your mouth and talk before you do anything else with that mouth, with the other person. It's as simple as that. Because otherwise you're ruining somebody's life. मुझ जैसा इंसान हेडलेस चिकन की तरह चीज़ें कर रहा था. इवन दो मैंने इतना अचीव किया इन माई करियर इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ पेंटिंग्स आई हैव मेड, द अमाउंट ऑफ एग्जीबिशंस आई हैव डन, द अमाउंट ऑफ मनी आई मेड, एवरीथिंग. मेरा इंटरनल वर्ल्ड रूइंड था यार. आई एम स्टिल पिकिंग अप द पीसेस. सो my dear men, I love you guys. I love men. I love my men. I love men in general. I'm not a man hater. Still I'm not a man hater. And जब मैं ये सब लोगों को ऑनलाइन देखती हूँ, मैं कहती हूँ यार पता नहीं कैसी सी हूँ मैं, मुझे अभी भी आदमी पसंद है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो कितने अनोइंग हैं. मुझे आदमी बहुत पसंद है क्योंकि बहुत सारी जगहों में बहुत आदमियों ने मेरी बहुत मदद भी करी है, यू नो. तो बट सब आदमियों को, नॉट ऑल मैन के जो सम मैन हैं वो सब मुझे बहुत पसंद है. बट वी विल लर्न हाउ टू ट्रीट women. Let's decode this. Let's get interested in understanding what women like. How can you make them feel comfortable? Because any woman that you're going to get involved with has gone through something more or less or similar to what I have gone through.
है ना। किसी के अंकल ने कुछ करा है, किसी के भाई ने कुछ किया है, किसी के साथ किसी और ने कुछ किया है, किसी और ने कुछ किया है, सबके साथ कुछ ना कुछ हो चुका है। और हम लोग बहुत, इफ़ यू रियली वांट टू मेक दिस वर्क, थोड़ा इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म लाना पड़ेगा इन वांटिंग टू लर्न how to work through this. And for the women, if you've gone through this, you're not alone. Find a community where you are able to talk about it. You don't have to isolate yourself from this whole from the world and think that ye ek din it'll get over. It doesn't. As you see, these are patterns that come back and happen again and again. The patterns repeat themselves. So find a community, talk about it, heal, release these emotions. If at all you want to work with me, I am specializing in this because I am coming from my lived experience. I have worked with other women also. You can come talk to me also. Okay? I don't know a better way to end this video. So I guess this is it. If you have questions, you can ask me. If there's anything else that you'd like to know, you can ask me. Please be respectful. It has taken a lot of years and courage for me to show up here like this and talk about it. रंडी करोगे कोई बात नहीं, कर लो, जो करना है करो, ठीक है. Have fun. But women, don't feel alone. Talk about it. Thanks for listening and watching.